students. Today we are going to study the ninth chapter of English, The Origin of Chess. Let's start reading. Reflect. Given below a few games, classify them as indoor game and outdoor games. For example, this is a Ludo board. This is an indoor game. A football is an outdoor game. Similarly, these two are also the indoor and outdoor games. Let's start reading the chapter. There's a famous legend about the origin of chess. Origin means beginning or birth. So there is a famous legend about the birth of chess. Hundred of years ago, there was a sultan in India who loved to play games, but he had got bored and wanted a new game that was more challenging. He commissioned to give job to someone. Commissioned means given job to someone, a mathematician who lived in his empire to come up with a new game. तो बहुत टाइम पहले 100 years ago there was a sultan who loved to play games. So he was getting bored. ऊब रहे थे वो, तो उन्होंने एक जॉब दिया. किसे दिया था? मैथमेटिशियन को दिया था जो उनके एम्पायर में रहते थे. After months of struggling with all the kinds of ideas, the mathematician came up with a game of Chaturanga. The game had two armies, each led by a king. It was played on a simple 8x8 scoreboard. The Sultan loved the game so much that he offered to give the poor mathematician anything he wished for. तो आफ्टर मंथ, कुछ महीनों के बाद के स्ट्रगल के, मेहनत के और आइडियाज़ के बाद मैथमेटिशियन एक गेम के साथ आए जिसका नाम था चतुरंगा. चतुरंगा एंशंट नाम था चेस का. द गेम हैड टू आर्मीज. उस गेम के दो आर्मीज थे जो किंग ने ही बनाए हुए थे, किंग के द्वारा ही बनाए जाने वाले थे. वो 8x8 स्क्वायर बोर्ड पे खेला जाता था. सुल्तान को वो गेम इतना अच्छा लगा कि उन्होंने पुअर मैथमेटिशियन को कहा कि वो उसे जो भी वो मांगेगा वो उसे देंगे. ओ एम्परर, माई विशेस आर सिंपल. आई ओनली विश फॉर दिस. गिव मी 1 grain of rice for the first square of the chessboard, 2 grain for the next square, 4 for the next, 8 for the next, and so on for all 64 squares, with each square having double the number of grains as the square before, responded the mathematician. तो जब एम्परर ने पूछा मैथमेटिशियंस कि आपको क्या चाहिए, आपको जो भी चाहिए वो मैं आपको दूंगा, तो उस मैथमेटिशियन ने विश किया कि मेरी विश बहुत सिंपल है. आप मुझे 1 grain राइस दोगे एक स्क्वायर के लिए, 2nd grain नेक्स्ट स्क्वायर के लिए, और फिर डबल करते जाएंगे, 4 फॉर द नेक्स्ट, 8 and so on. Is that all? Asked the king. Why don't you ask for gold or silver coins instead of the rice grainless? एम्परर कहता है कि बस यही आपकी विश है, आप सिल्वर या गोल्ड क्यों नहीं मांगते हो राइस की जगह? द राइस विल बी सफिशिएंट फॉर मी, रिप्लाइड द मैथमेटिशियन. मैथमेटिशियन कहते हैं जो राइस है वो मेरे लिए सफिशिएंट होगा. द एम्परर अग्रीड, अमेज्ड दैट द मैन हैड आस्क्ड फॉर सच अ स्मॉल रिवॉर्ड, और सो ही थॉट. He ordered his staff to lay down the grains of rice, but soon learned that all the wealth in his kingdom would not be enough to buy the amount of rice needed on the 64th square. After a week, his treasurer came back and informed him that the reward would add up to an astronomical sum far greater than all the rice that could be produced in many centuries. तो एम्परर हाँ बोल देते हैं कि वो उसको राइस ग्रेन देंगे, और ये सोच के शॉक थे कि उसने इतना छोटा सा रिवॉर्ड मांगा है. पर ऐसा हो सकता है कि ऐसा किंग सोच रहे हैं कि वो छोटा हो, बट वो छोटा ना हो. उन्होंने ऑर्डर किया स्टाफ को कि वो ग्रेन्स लेकर आए, राइस ग्रेन्स लेकर आए जल्दी से जल्दी. पर उन्हें पता चलता है कि उनके किंगडम में इतना चावल है ही नहीं, इतनी राइस है ही नहीं कि वो 64th स्क्वायर की जो ज़रूरत है जितने वो कंप्लीट कर पाए. एक वीक के बाद उनके ट्रेजरर्स आके बताते हैं. ट्रेजर मतलब वो लोग होते हैं पर्सन हु कीप्स रिकॉर्ड्स ऑफ मनी एंड प्रॉपर्टी, जो हिसाब रखते हैं पैसे और प्रॉपर्टी का किंग के एम्पायर का. तो वो आके उनको बताते हैं कि इतना तो है ही नहीं कि हम उनकी रिपोर्ट को पूरा कर सके. एस्ट्रोनॉमिकल का मतलब होता है एक्सट्रीमली लार्ज, एस्ट्रोनॉमिकल सम बन जाता है वो. दैट ऑल द राइस कुड बी प्रोड्यूस्ड इन मैनी सेंचुरीज, इतना कि वो पूरा राइस 100 years तक भी ना हो पाए. यू हैव प्रोवाइडेड वी with such a great invention, and yet I cannot fulfill your simple wish. You are indeed a genius, said the Sultan and made the mathematician his topmost advisor. तो किंग कहते हैं कि तुमने मुझे कितने बढ़िया इन्वेंशन से
ग्रेट इन्वेंशन दिया है। इन्वेंशन मतलब होता है क्रिएटिंग समथिंग न्यू। उन्होंने कुछ नया जो बनाया उसे इन्वेंशन उन्होंने कहा कि आपने मुझे कुछ नया बना के दिया, पर फिर भी मैं आपकी विश पूरी नहीं कर पाया, आप एक जीनियस हो, ऐसा सुल्तान ने कहा, और मैथमेटिशियन को उनका टॉप मोस्ट एडवाइसर बना दिया। ये स्टोरी कहाँ से अडेप्ट हुई? अडेप्टेड फ्रॉम एल मसूदीज अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सो ये द चैप्टर एंड।